میں ایک سید زادی تھی، حسین، خوبصورت اور نرم لہجے والی۔ میں بہت حساس دل کی تھی، لوگوں کو کبھی اپنی آنکھوں کے سامنے دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میری شادی میرے باپ نے بڑی دھوم دھام سے کی۔ مجھے اپنے باپ سے محبت تھی، اسی لیے میں نے آنکھیں بند کیے۔ جہاں انہوں نے شادی کرنی چاہی، میں نے سر ہلا دیا۔ شادی ہوتے ہی جب میں وہاں پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں کہ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں ہر کوئی غربت میں ڈوبا ہے۔ یہ ایک بہت خستہ حال گاؤں تھا، ہر طرف پانی کی کمی تھی، لوگ بھوک سے نڈال رہتے تھے۔ یہ گاؤں شہر سے بہت زیادہ دور تھا اور ادھر زیادہ سہولتیں بھی میسر نہ تھیں۔ یہ گاؤں دکھنے میں تو کافی خوبصورت تھا، پر یہاں بہت سی چیزوں کی کمی تھی۔ پہلے تو میں بہت پریشان ہوئی، کیونکہ میں تو باپ کی لاڈلی تھی، کام تو سارا آتا تھا پر کبھی کیا نہیں تھا۔ لیکن چونکہ میرے باپ کی خواہش تھی کہ باقی تمام عورتوں کی طرح میں بھی اپنا گھر بار سنبھالوں، اسی لیے شادی کے بعد مجھے سارا کام خود کرنا پڑتا تھا اور میں بخوشی کرتی بھی تھی۔ میرا شوہر کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، جس سے زندگی کا گزر بسر ہونے لگا۔ مجھے گھر کے کام کرنے پر کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پانی کا مسئلہ پورے گاؤں کے لیے جان کا عذاب تھا۔ میلوں سفر کر کے ہمیں پانی لانا پڑتا تھا۔ عورتیں مشکیزے میں پانی بھر کر لاتی اور اپنے بچوں کی پیاس بجھاتی۔ میرے پاؤں میں تو چھالے پڑ جاتے، اتنا لمبا سفر پیدل کرنا بہت مشکل تھا۔ راستے میں سب خواتین کسی سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ جایا کرتی تھیں تاکہ کچھ آرام کر کے باقی راستہ طے کریں۔ میں ان سب چیزوں کی عادی تو نہ تھی، لیکن پانی بنا گزارا بھی نہ تھا۔ لیکن پھر یہ روز کا معمول ہو گیا۔ ہم سب گاؤں کی خواتین صبح صبح سر پر مٹکے ٹکائے ایک لمبی راہداری کو چل دیتی۔ صبح صبح سورج کی کرنیں اتنی تپش نہیں دیتی تھی، لیکن واپسی پر سورج سر پر چڑھ چکا ہوتا اور گرمی سے برا حال ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن اس سب میں پریشانی کی بات یہ تھی کہ یہاں پر پانی بیچا جاتا ہے۔ جس شخص کا کنواں تھا وہ بھاری سکوں کے عوض ایک مٹکا بھرنے دیتا تھا۔ کیونکہ گاؤں والے مجبور تھے، اسی لیے وہ بیچارے پانی کے لیے اس شخص کو رقم دیا کرتے تھے۔ میرے شوہر کو مجھ سے کوئی گلہ نہیں تھا، بلکہ وہ میرا ہاتھ بٹاتا تھا کام میں۔ میرا ایک دیور تھا جس سے میری خاص نہیں بنتی تھی، بلکہ شروع دن سے ہی میری اس سے لڑائی رہتی تھی۔ میرے دیور کے پاس کافی پیسہ تھا، لیکن اس نے کبھی بھی کسی کو نہیں دیا تھا، بلکہ اپنے اوپر ہی خرچ کرتا تھا۔ وہ ایک کھڑوس قسم کا بندہ تھا۔ میرا شوہر مجھے بہت سمجھاتا کہ میرے بھائی سے مت جھگڑا کرو، پر مجھے اس پر ہمیشہ ہی غصہ رہتا تھا۔ مجھے اس کا انداز عجیب لگتا تھا، جو کہ انتہائی لالچی تھا۔ گاؤں کے غریب لوگ بہت پریشان تھے، کیونکہ اب کنویں کے مالک نے ایک مٹکے پر سکوں کی تعداد کو بڑھا دیا تھا۔ وہ لوگ تو پہلے ہی بڑی مشکل سے گھر کا خرچہ چلاتے تھے، اب اتنا بھاری رقم کیسے دیتے؟ وہ سب پانی کی قلت پر رو تڑپ رہے تھے۔ میں نے کنویں کے مالک سے بات کی کہ تم کچھ پیسے کم کر لو، لیکن وہ مجھ پر چڑھ دوڑا اور خوب سنائی، یہاں تک کہ مجھے دھکا دیتے کہا کہ میں پانی نہ بھرا کروں۔ میں اس شخص پر شدید غصہ ہوئی، جب گاؤں والوں کی حالت دیکھتے ہوئے بھی رحم نہیں کھا رہا تھا۔ مجھے شروع ہی سے لگتا تھا کہ یہ شخص کنویں کا مالک نہیں ہے، کیونکہ اس کے کپڑے، اس کا انداز سبھی کسی عام شخص کی طرح تھا۔ حالانکہ کنویں کا مالک ہونے کی وجہ سے وہ کافی پیسہ کماتا تھا، لیکن ابھی میں سچ نہیں جانتی تھی۔ گھر آئی تو دیور نے کھانا مانگا، لیکن پانی تو تھا نہیں۔ مجھے تو پہلے ہی کافی غصہ تھا، اسی لیے میں اس سے لڑ پڑی۔ میں نے اسے کہا پانی تو ہے نہیں، کہاں سے کھانا لاؤں؟ لیکن میرے دیور نے مجھے تنزیہ دیکھا اور کہا کہ پانی کو خریدو اور لے آؤ، کیونکہ پانی بہت قیمتی ہے، اسی لیے مہنگا تو ہونا ہی ہے۔ میں نے رات کو شوہر کو بتایا کہ کنویں کا مالک پانی بہت مہنگا دیتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہاں پر صرف ایک ہی کنواں ہے جو بہت دور ہے، اگر وہ شخص پانی دینا بند کر دے تو گاؤں والے پانی کی کمی سے مر جائیں گے، اسی لیے جتنا وہ پیسہ مانگتا ہے اسے دے دیا جائے۔ اس کی بات پر میرا دل کٹ کر رہ گیا اور میں اس کے لیے کوئی ترکیب سوچنے لگی۔ اگر میں یہ کر لیتی تو یقیناً گاؤں والوں کا فائدہ ہوتا۔ پھر میں نے وہ کام کر دیا، ایسا کام کہ اگر میرے دیور کو معلوم ہو جاتا تو وہ میرے شوہر کو لازمی میرے خلاف بھڑکاتا، اور یہ کام میں نے صرف لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کام سے میرے باپ کو بھی تکلیف ہوتی، لیکن میں مجبور تھی۔ یہ کام بھی میں نے سب سے چھپ کر کیا تھا۔ رات کو جب میں یہ کام کر کے واپس آ رہی تھی تو میرا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ میں تیز تیز چلتی گھر پہنچنا چاہتی تھی تاکہ کسی کو کچھ پتہ نہ لگے، لیکن ایک جھونپڑی کے پیچھے سے دو لوگوں کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ کیونکہ میں اس جھونپڑی کے قریب سے گزر رہی تھی، اسی لیے تمام سرگوشیاں بآسانی سن سکتی تھی۔ کوئی شخص برہم ہو رہا تھا دوسرے پر۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتی ذرا آگے ہوتی پچھلے جانب دیکھا۔ سامنے کا منظر دیکھ میری آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ کنویں کا مالک کسی شخص کے ساتھ کھڑا تھا اور اسے پیسے دے رہا تھا جو آج کنویں سے کمائے تھے۔ دوسرا شخص اسے دیکھتے ہی میں چکرا گئی، میرے حواس معطل ہو گئے، یعنی یہ شخص تھا کنویں کا مالک۔ میرا شک درست ثابت ہوا۔ میں دبے قدموں سے وہاں سے نکلی اور گھر آ گئی۔ میرا شوہر آج شہر گیا تھا کچھ سامان لینے کے لیے، اسی لیے وہ آج لیٹ آئے گا۔
इसी वजह से मैं अपना काम करते सो गई थी। गांव में एक नया कुआं बना था और मैं बहुत खुश थी क्योंकि लोग अब बजाय मीलों का सफर तय करने के यहीं से पानी भर लेते और इसको दुआएं देते जिसने ये लगवाया था। और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये थी कि पानी मिलता भी मुफ्त था। गांव में खुशहाली आ गई और उन लोगों को देखकर मैं पुरमुसरत रहा करती थी। लेकिन एक डर भी था जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अगर मेरे शौहर को वो सच्चाई पता चल गई तो वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। मेरे देवर के माथे से अब बल नहीं जाया करते थे। जब से कुआं बना था वो मुझे घूरता ही रहता था, जैसे कोई नुकसान कर दिया हो उसका। मैं उसे नजरअंदाज कर देती क्योंकि पता था कि अगर उसे झगड़ा करती तो वो बात का बतंगड़ बना देता, क्योंकि वो मुझे मेरे शौहर के सामने नीचा दिखाना चाहता था। नए कुएं के बनने पर दूसरे कुएं पर लोगों ने जाना ही बंद कर दिया था और कुएं का मालिक इस वक्त बहुत तैश में था क्योंकि उसका काम बंद हो गया था। अब वो आतिशफिशां बना बैठा था। मैं अच्छे से जानती थी कि उसका काम ठप होने की वजह से वो आजकल गुस्से में होगा। मैं चारपाई पर बैठी लहसुन छील रही थी जब मेरा देवर तुन फुन करता अंदर आया और कुछ देर बाद वापस चला गया। उसके तेवर देखकर मेरा दिल दहल गया। आखिर वो अब क्या करेगा। मेरा देवर तो शुरू से ही मुझे मशकूक लगता था। मैंने गैर महसूस अंदाज में उसका पीछा किया क्योंकि वो जिस तरह निकलने लगा था किसी को कत्ल करके ही लौटेगा। अचानक वो कुएं के पास रुका और तफ्तीशी निगाह से इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। नए कुएं के पास इस वक्त कोई नहीं था क्योंकि दोपहर का वक्त था। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। मेरे देवर ने कुएं पर झुकते कुछ अंदर फेंका और मकरू मुस्कुराहट के साथ वहां से चला गया। मेरी आंखों की पुतलियां फैल गईं। किसी अनहोनी के एहसास ने सांस रोक दिया। पता नहीं इस शख्स ने क्या फेंका था अंदर। मैं उसके जाने के बाद फौरन कुएं के पास गई और अंदर झांकते देखा, लेकिन वहां सिर्फ जरा सा पाउडर ही था जो पानी पर तैर रहा था। कोई सफेद सा पाउडर था। ये किस चीज का पाउडर था मैं तो समझ न सकी, लेकिन इतना समझ चुकी थी कि यह बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने ये जानने के लिए पानी में क्या है कुएं से पानी भरा और उसे एक शख्स के हवाले कर दिया। वो शख्स ऐसे काम करता था कि बआसानी पता लगा सकता था कि पानी में क्या डाला है। मुझे जब तक सच्चाई न पता चल जाती तब तक मुझे गांव वालों को पानी भरने से रोकना था। मैंने बहाना बना दिया कि कुएं का पानी ठीक नहीं है, इसीलिए कोई पानी न भरे। सब लोग दोबारा परेशान हो गए। मैं घर पहुंची तो मेरा शौहर सहन में चक्कर लगा रहा था, जैसे पैदल मार्च कर रहा हो, और मुझे जहरीली निगाहों से घूरा। मुझे देखते ही वो भड़कते हुए मेरे करीब आया और मुझसे पूछा कि इस कुएं के मालिक से तुम रात को मिली थी। मेरे हवा झुंझुना उठे। मेरे शौहर को कैसे पता चला कि रात में उस शख्स से मिली थी। मैंने उसे समझाया कि मैं सिर्फ कुएं के मुतालिक बात कर रही थी, पर वो हत्थे से उकड़ गया। मेरा देवर उस वक्त घर आया। मेरे शौहर को मुझसे लड़ते देख वो मुस्कुरा उठा। लेकिन आज मैंने अपने देवर की सच्चाई अपने शौहर को बता दी। मैंने अपने शौहर को सब बता दिया कि तुम्हारा भाई ही कुएं का मालिक है। ये सुनते ही वो हैरान रह गया और अपने भाई को देखा जो सुकून से खड़ा था। मेरे देवर ने तस्लीम कर लिया कि वो कुआं उसी का है, क्योंकि वो जानता था कि मैं सब जान चुकी हूँ। फिर मैंने अपने शौहर को बताया कि वो रात को उसी से यही कहती थी कि तुम गांव वालों की हालत पर रहम करो, इतना महंगा पानी ना बेचा करो। लेकिन ये रोज मेरी बात नहीं मानता था। इस पर पैसे की हवस सवार थी। इसी वजह से मैं हमेशा अपने देवर से लड़ती थी। मेरा देवर बड़ा खुश खुश खड़ा था और मैं जानती थी कि वो क्यों खुश है। नए कुएं का पानी खराब करके वो अपना काम चालू कर सका था। मेरे शौहर ने सर हिला दिया क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका भाई इतना अमीर हो सकता है। अगले रोज जब सारे गांव वाले कुएं के पास खड़े थे तो मैं वहां पहुंची। वो सब पानी के लिए अब दूसरे कुएं का रुख कर रहे थे और मेरा देवर चालाकी से मुस्कुरा रहा था। इतना बड़ा शैतान था वो। मैंने सब गांव वालों को बताया कि उस पानी में जहर डाला गया है। सब गांव वाले हैरान थे कि आखिर कौन शख्स ये काम कर सकता है। मेरा शौहर भी वहीं खड़ा था। अगर मैं सबको बता भी देती कि ये काम किसने किया है तो कोई यकीन न करता। मेरा देवर कुएं का मालिक है ये बात किसी को पता नहीं थी, क्योंकि उसने एक बंदा रखा हुआ था जो खुद को कुएं का मालिक कहता था। मैंने वो जहरीला पानी एक हकीम को दिया था जो काफी तरीके जानता था कि क्या किया जाए। हकीम ने सबको बताया कि पानी जहरीला हो चुका है, इसमें जहरीला पाउडर डाला गया है। गांव वालों ने दोबारा से मेरे देवर के कुएं पर जाना शुरू कर दिया और उसका काम दोबारा से चलने लगा। मेरे देवर ने मुझे साफ साफ धमकी दी थी कि अब उसकी राह में रुकावट डाली तो वो उसे मार देगा। एक रात मैंने अपने शौहर से कहा कि तुम्हें कुछ दिखाना है, पर तुम छुप कर देखोगे। मेरा शौहर मान गया। मैं अपने देवर के पास आई और उसे कहा कि तुमने कुएं में जहर डाला है। पहले तो वो खौफजदा हो गया, लेकिन फिर कहका लगा उठा। शैतानी कहका। उसने कहा कि वो अपने काम को बंद होता नहीं देख सकता था, इसीलिए ये सब कुछ किया है। उसी ने पानी में जहर डाला था ताकि लोग उस कुएं से पानी न भरें। मेरे शौहर ने अफसोस से अपने भाई को देखा जो लालच के नशे में किसी का नुकसान करने से भी गुरेज नहीं कर रहा था, बल्कि वो बड़े फख्र से अपना किस्सा बता रहा था। मेरा शौहर जो एक तरफ छुपा हुआ था फौरन बाहर आया और मेरे देवर को मारना शुरू कर दिया। मेरा देवर भी काफी लड़ झगड़ रहा था। उनकी आवाजों पर चंद लोग वहां आ गए और माजरा देखने लगे।
दो भाई एक दूसरे की जान लेने के दर पे थे। मेरा देवर रात को ही बाहर भाग गया था। मेरे शौहर ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैंने सारी हकीकत उसको बताई और उसके भाई की सच्चाई बताई। अपने भाई का भयानक चेहरा देखते ही वो टूट सा गया था। मेरा शौहर भी एक रहमदिल इंसान था। उसने आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि हमेशा किसी न किसी की मदद ही की थी। पर आज अपने भाई को पूरे गांव वालों का दुश्मन बना देख वो काफी गमजदा हो गया। गांव में लगे कुएं को हकीम ने साफ करने का मशवरा दिया कि अगर कुएं को अच्छे से साफ कर दिया जाए तो दोबारा जो पानी होगा वो जहरीला नहीं होगा। तमाम गांव वालों ने मिलकर वो कुआं साफ किया था। मैं भी उनके साथ मिलकर काम कर रही थी। जब घर पहुंची तो देखा कि हर तरफ सामान बिखरा पड़ा है, संदूक खुले पड़े हैं, जबकि मेरा शौहर सर हाथों में गिराए बैठा था। मुझे देखते ही उसने अपने लहू रंग आंखें उठाई और चलता मेरे करीब आया। मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांप गया। अगर जो मैं सोच रही थी वही मेरे शौहर ने पूछ लिया तो फिर वही हुआ। मेरे शौहर पहली बार मुझ पर चिल्लाते हुए बोला। मेरे शौहर ने मुझसे जेवर का पूछा था जो मेरे बाप ने दिया था। मैंने खौफ से उसे देखा। अगर मैं उसे बता देती कि जेवर मैंने बेच दिया है, वो भी उसकी इजाजत के बगैर, तो वो क्या करता। मैंने अपना जेवर बेच दिया था। मेरे बाप ने मुझे काफी जेवर दिया था और उसी जेवर को बेचकर मैंने नया कुआं खुदवाया था। पर यह बात अपने शौहर से खुफिया रखी थी। मैंने सब कुछ डरते डरते अपने शौहर को बता दिया कि मैंने देवर की चालाकियों और लालच से तंग आकर अपना जेवर बेच दिया और जो पैसे मिले थे उनसे कुआं बनवा लिया था। पहले तो मेरा शौहर मुझे देखता रहा चंद पल यूं ही सर के, और उसने गहरी सांस ली और चारपाई पर बैठ गया। वो मुझ पर बरहम नहीं हुआ, न ही मुझे बातें सुनाई, न ही कोई तंज ताना दिया, बल्कि उसने मुझे तहम्मुल से बताया कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारा सहारा हूं। उसने मुझे कहा कि मैं कुछ ना छुपाया करूं उससे, क्योंकि जब हम कुछ छुपाते हैं तो गलत फहमियां पैदा होती हैं, झगड़े बदगुमानियां जन्म लेती हैं। इसीलिए जब भी कुछ करो तो मुझे बताया करो। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा शौहर मेरे साथ खड़ा है। मैं शर्मिंदा हुई कि अपने शौहर से मशवरा किए बगैर जेवर बेच दिया, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे कुछ ना कहा। मुझे प्यार से समझाया कि रिश्ते नाजुक होते हैं और जरा सी गलत फहमी पर टूट जाते हैं। बात यह थी कि मेरे शौहर को किसी ने कहा था कि मैं अपना जेवर बेचकर पैसे अपने मायके भेज दिए हैं, लेकिन मेरे शौहर ने मुझसे पूछना मुनासिब समझा और बात पता चलने पर उसे फख्र था मुझ पर। मेरा देवर वापस आ गया था। अब वो कोई साजिश करेगा जिससे उसका काम चल पड़ेगा। मैंने शौहर को बताया सब कुछ। हम दोनों ही परेशान थे, इसीलिए फिलहाल उसकी कार्रवाई के इंतजार में थे। रात को आहट की आवाज पर मेरी आंख खुली। मैंने देखा मेरा देवर सेहन में बैठा खाना खा रहा है। मेरी आंखों के सामने उसने बर्तन से पानी भरते ही पी लिया। मैं ये देखती बौखला गई और दौड़ती उस तक आई, लेकिन तब तक वो ग्लास पूरा पी चुका था। मेरा शौहर भी मेरे पीछे आया, लेकिन अपने भाई को तड़पते देख वो खुद भी तड़प गया। आखिर था तो भाई ना। मैंने उसे बताया ये वही पानी है जो जहरीले कुएं से भरा था। ये पानी हकीम साहब ने रखा था कुछ करने के लिए, पर मेरे देवर ने वही पी लिया। मौत के खौफ से वो एड़ियां रगड़ता रगड़ता मर गया। दूसरों के लिए खोदे गए गड्ढे में वो खुद ही गिर गया। मुझे अफसोस था उसकी मौत का, जो अपने ही जहरीले पानी से मर गया। कुछ भी हो जाए, इंसान का किया लौट कर वापस जरूर आता है। कल को उसने दूसरों के लिए ये सब किया था, आज वो खुद इसकी भेंट चढ़ गया। मेरे शौहर ने अपने आंसू साफ किए और वहीं उसके पास बैठ गया। रिश्ते जहरीले ना भी हों, लेकिन उनकी तकलीफ पर दिल मचल जाता है। मेरा शौहर अपने भाई की लाश पर बैठा रो रहा था। मैंने उसके कांधे पर हाथ रखते दिलासा दिया। इस वाक़े को गुजरे 1 माह हो गया था। लोग अब मुफ्त में पानी भरते थे। वो कुआं जो मेरे देवर की मलकियत था, वो आज किसी की मलकियत ना था, बल्कि मेरे शौहर ने गांव वालों के नाम कर दिया था। हर तरफ खुशी थी। बस मेरा शौहर कभी कभी मुझे ये जरूर कहता था कि काश उसका भाई लालच में अंधा ना होता, पर जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है।